नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। All 6 ACs. If you have gone through it, can we move to the last phase? Issue of notification 31st March in all 35 constituencies. 35 constituencies. Issue of notifications 31st March. Last date of nominations 7th April. Scrutiny of nominations 18th April. Last date of withdrawal of candidature 12th April. Date of poll 29th April. 35. And the districts covered are Malda Part 2, Murshidabad Part 2, Birbhum Part 2, Birbhum, all 11 assembly constituencies, Calcutta North, all 7 assembly constituencies. As I said in the beginning only, the counting shall be done on 2nd May 2021. And there are two more parliament constituencies, Andhra Pradesh Tirupati and Karnataka in Belgaum. Since MCC shall be applicable on the restricted these constituencies because the entire state is not going to election, Mr. Sinha will issue a separate notification for that. Just like they will issue a separate notification for all the by-elections to all the states. We have the figures as follows. We have the number of vacancies, etc. I can tell you, but in all it is 18 plus 4. All the constituencies shall be issued separately by Election Commission. Before I end, भाई बैग चले जाओ। आप 1 मिनट बैठ जाए शिफारी जी, हो गया? Before I conclude this press conference, I should like to place on record the fact that as a citizen, one always respected and looked up to the institution of the Election Commission. Having been inside now for more than 4 years, I think one almost reveres it. I'm thankful to my family and friends, my brothers and sisters who have all been with me, and very, very thankful to both the commissioners we had done it once earlier also somewhere, but that was optics. This is reality. सर एक सवाल है सर। मैम Now Shefali ji will take over. शेफाली मैम, Your questions? Yeah. As promised, we said we'll begin with him. We'll begin with him here. I will. Please specify your name and media organization. My name is Venkataraman from Tamil Nadu. Sir, you made a statement. Tamil Nadu is a very sensitive state. That showing your presentation, Tamil Nadu is a peaceful state and it has only one phase of election throughout Tamil Nadu. तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर 5 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होगा, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होना है। तो पश्चिम बंगाल में 22 अप्रैल को छठा चरण का मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में यह मतदान होगा। चुनाव आयोग ने
ये जानकारी दी है। तो बंगाल में 27 मार्च को पहले फेज का मतदान होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी दी है। वहीं मतदान का समय 1 घंटा ज्यादा इस बार होने वाला है। तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतदान कराया जाएगा, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जाएंगी। और जिस दिन कोई त्योहार या फिर किसी तरह का कोई पेपर होगा, उस दिन वोटिंग नहीं होगी। तो कोरोना के जो तमाम मापदंड हैं, उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम जानकारियां चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो सीधी तस्वीरें आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे थे, जहां पर चुनाव आयोग ने आने वाले मतदानों के बारे में जानकारी मुहैया कराई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 8 चरणों में यहां पर मतदान होने पश्चिम बंगाल में। देखिए, बंगाल में जो स्थिति बनाया गया है, इलेक्शन कमिश्नर दबाव पे आके भारतीय जनता पार्टी में 8वां चरण में चुनाव हो रहा है। इस समय गर्मी भयानक रहता है। छोटा उस समय हम लोग को रामनवमी त्योहार और भी त्योहार रहता है, नया साल भी हम लोग को गिरते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी को दबाव में आके, मैं सुनील अरोड़ा साहब से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आपका नौकरी का अंतिम समय में आप ऐसे मत करके जाइए, कुछ अच्छा काम करके जाइए, तो सारे हिंदुस्तान आपको याद रखे। तो संजय जी, नाखुश हैं आप जिस तरीके से ऐलान किया गया है यहाँ पर 8 चरणों में मतदान का, उससे पूरी तरह से नाखुश हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाखुश। तो कल 8 गर्मी में कितना कार्यकर्ता लोग को परेशानी होना पड़ेंगे, वोटर को परेशानी होना पड़ेंगे। हाँ। और दूसरे नंबर बात, उसमें त्योहार भी रहता है हम लोगों का। हाँ, ठीक है। लेकिन संजय सरकार जी, जिस तरीके से त्योहारों का आप जिक्र कर रहे हैं, त्योहारों के दिन तो मतदान नहीं रखा गया है। चुनाव आयोग ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि किसी भी त्योहार पर या फिर कोई अगर पेपर होगा, उस दिन मतदान नहीं होने वाले। देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ, महीना भर हम लोग को त्योहार रहता है। उस महीना भर हम लोग को त्योहार रहता है। एक दिन का त्योहार नहीं होता है, ये बात है। एक दिन का त्योहार हो जाता है। हाँ। तो उसमें होता है। हाँ। मेरे कहने का मतलब है, त्योहार वहाँ पर होते रहते हैं और त्योहार में सबको मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। ये समय नहीं करके 1-2 दफा केरल में 1 दफा में चुनाव हो रहा है, असम में 3 दफा में हो रहा है, तमिलनाडु भी बड़ा स्टेट है, वहाँ पर भी आपको एक ही दफा में चुनाव हो रहा है। बंगाल में ऐसे कौन सा हलचल मच गया जिसमें 1 दफा में नहीं कर पाया चुनाव कमीशन में? मेरा यही सवाल मेरा सवाल है चुनाव कमीशन से, क्यों नहीं कर पाए हैं जी? नहीं करने का रीजन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को दबाव में आके किया, वोट मैनिपुलेशन, ना ईवीएम मैनिपुलेशन, किसके दबाव पर आके भारतीय जनता पार्टी किया है और इलेक्शन कमीशन ये काम किया है? इसको जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जी संजय जी, जिस तरीके से बड़े आरोप आप यहाँ पर लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि दबाव में आकर ये 8 चरणों में मतदान का फैसला यहाँ पर लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है या कोई और दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा आरोप यहाँ पर आप लगा रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? आखिर किस वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं बता, बहुत गर्मी का समय रहता है, उस समय में भयानक गर्मी होता है। एक नंबर बात, जो चुनाव के जो कार्यकर्ता जो काम करता है, देखिए कार्यकर्ता तो मेन होता है और रैली भी होता है, जगह जगह घर में जाकर समझाना पड़ता है, फिर चुनाव के दिन में वोट डालने पड़ता है। तो एक दिन में होने से क्या होता है, तो इतना तकलीफ नहीं होते हैं। और दूसरे नंबर बात है, 8 दफा चुनाव करने का मतलब होता है बंगाल के ऊपर में पूरा अन्याय कर रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय हम लोग मानने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। इस कारण में तो बंगाल के ऊपर में क्यों किया जाता है? असम, तमिलनाडु, केरल उसके ऊपर नहीं है, सिर्फ बंगाल के ऊपर ही सब कुछ अब जाहिर दिखाते हैं, बाद बाकी कहीं भी अब जाहिर नहीं दिखाते। ये क्या रीजन है? इसी के बल पे हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, जी चलिए,
चलिए संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार से हम बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दबाव में आकर चुनाव आयोग ने 8 चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान कराने का फैसला लिया, जिससे वो पूरी तरह से नाखुश है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।